Good morning, children. Now we are going to understand arrow method. Unitary method we have understood. You can solve by any method, but in exam if asked to solve the question by arrow method or unitary method or any method, then you have to follow. Okay? But if it is not written, then you can solve by any method. So first of all, you need to understand arrow method is a easy method to solve the questions. Direct proportion and indirect proportion, that is direct and inverse proportion, we have understood already. So in that type of questions we need to understand which type of question it is, direct or indirect. According to that we have to solve by arrow method. Okay, by unitary method also it can be solved. How? Just see here, this one questions, extra questions I have written for you. First number, if the cost of x meters of wire is d rupees, value is not given, x and d written, then what is the cost of y meters of wire at the same rate? So you can solve by unitary method also, children. If you will solve by unitary method, how you will solve? X meter cost given, x meter of wire cost given, d rupees, d written, okay, rupees d. Okay, then you have to find the cost of 1 meter. Okay, 1 meter cost equal to d by x. Then here asking what is the cost of y meter of wire at the same rate. Y meter, then you have to multiply y meter of cost d by x into y. So value would be yd by x. So this can be solved by unitary method. Now see here how we will solve this by arrow method. Same question. By arrow method we can solve x. Here write meter, here write rupees. Here given x meter, wire, and wire don't write, wire length given in meter, so meter and rupees, or you can write cost also, no problem. Already x and y mentioned here variable, so another variable we have to take. That cost you have to find. I have written c in place of cost. X meter rupees d, y meter how much? So let x, but x already here, so I have taken c for cost. Okay, now you have to find out is it direct or indirect. So read the question and you have to understand. You know the concept of direct or indirect proportion. In direct proportion, if one quantity increase, other will also increase. If one quantity decrease, other also decrease. And indirect, if one quantity increase, other decrease. And if one quantity decrease, other increase. So in case of length of wire, if length of wire would be more, cost would be more, right? If length of wire would be more, the cost would be automatically more. It depends on the length of the wire, so it is direct proportion. One quantity increase, other will also. If the question asks more and more, that means direct. If asking more and less quantity, that is indirect. It is easy to understand, children. So you have to, first of all, you need to understand what you have to find out. C. So keep the arrow head down. What you have to find out? You have to keep the arrow down and then find out. This is direct proportion, so that is why it will go in the same direction. Head would be down. Okay, now solve it. First write this one. What you have to find out? First of all write this. C in numerator, head part will go in numerator. This arrow of the head, C. What you have to find out? C write in numerator. C by d equal to head is y by x. Head of the arrow will go in numerator, remember. Now you have to find out C means cost. So y cross multiply yd by x. So in both way we can do, but now you have to understand arrow method. 10D exercise you have to solve by arrow method only. Now next question. If the price of 6 toys is rupees 264.37,
what will be the approximate price of 5 toys? Here written approximate children, so avoid decimal part. Decimal, after decimal no need to take, approximate already written, so only take 264. If the price of 6 toys is rupees 264, by arrow method in competitive exam it is easy method to solve fast. Okay, that is why you need to understand arrow method. First write down here price of 6 toys and price given, so you can write like this, toys and price. Okay, now 6 toys cost 264, 5 toys how much, we can let x. Okay, what you have to find x, so keep the arrow down, automatically close your eyes and keep your arrow down. जिसे फाइंड करना है उसकी तरफ एरो नीचे कर दोगे आंख बंद करके, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन में पढ़ के वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डायरेक्ट जा रहा है या इनडायरेक्ट फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ देखोगे 6 टॉयज़ है, फिर यहाँ 5 हो गया, ठीक है। 6 टॉयज़ के दाम कितने हैं, 264। 6 जितने खिलौनों के ज़्यादा दाम होंगे उतना ही प्राइस हाई होगा। ओके, नंबर ऑफ प्राइस इज इंक्रीजिंग हियर, so one quantity increasing, other also increasing. Okay, so it will go in direct variation, direct proportion में चला जाएगा. Then automatically x by 264 write down, head part will go in numerator and 5 by x, solve it, you will get the answer 220. Okay, now next question, fast you see. 36 men can complete a piece of work in 18 days. In how many days will 27 men complete the same work? So write here men and here days. Okay, now 36 men complete a work in 18 days, write down. Now 27 men, how many days it will complete, x. So automatically close eyes and keep the arrow down, जो फाइंड करना है उसकी तरफ एरो आ जाएगा। अब देखोगे कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो यहाँ देख रहे हैं 36 मेन में है, 18 दिन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मेन ज़्यादा होंगे तो दिन कम होगा। अगर तुम्हें एक नंबर ऑफ मेन को बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा, उतना ही जल्दी काम होगा। ज़्यादा आदमी होंगे तो जल्दी काम ख़त्म होता है ना। उसी तरह से 27 आदमी है, 27 मेन, तो कितने दिन लगेंगे। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मोर और लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर है, ये क्या है, लेस है। तो मोर और लेस के केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट, इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन यू कैन से। सो x by 18, 36 बाई एरो का जब इनडायरेक्ट के फॉर्म होंगे तो एरो अपोजिट होता है, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर 36 by 27. सॉल्व इट लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू कैन विल गेट द 24, मीन्स 24 डेज लगेंगे। 27 जितना आदमी उतना दिन कम, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट, ये 3 एरो वाला है। अब 3 एरो वाला कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से सभी। कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट ऑफ सॉल्ट ईच वेइंग 900 ग्राम्स इज ₹28. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट्स इफ ईच पैकेट्स वे 1 kg। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या लिखना है, पैकेट्स लिख लोगे, ग्राम्स लिख लोगे, और यहाँ कॉस्ट भी है। तीन आइटम है, क्वेश्चन पढ़ के खुद ब खुद समझ आ जाएगा तुम्हें क्या करना है। पैकेट्स, ग्राम, कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट। 16 पैकेट 900 ग्राम, कॉस्ट है 28, लिखते जाओगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद है 27 पैकेट, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम है तो ग्राम में ही लिखोगे, ये नहीं कि kg में 1 kg डाल दोगे। ओके, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो यहाँ 1000 लिखेंगे, ग्राम है क्योंकि। ओके, कॉस्ट की क्या निकालना है, आई डोंट नो, सो लेट एक्स। तो सबसे पहले एरो इसके तरफ करोगे डाउन, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो जिसके तरफ हमें जो x फाइंड करना है वैल्यू, उसके तरफ हेड करते हैं। आँख बंद करके ये करोगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ो और देखो कि अभी ये एरो भूल जाओ, ठीक है। अब ये इन दोनों में जो हमें फाइंड करना होता है उससे पहले रिलेशन निकालते हैं। अभी ये पार्ट अभी भूल जाओ, ग्राम का पार्ट, ठीक है। अभी कॉस्ट और पैकेट से रिलेशन देखते हैं कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे 16 पैकेट है, कॉस्ट क्या है 28, इंक्रीज हो रहा है, पैकेट ज़्यादा होंगे तो दाम ज़्यादा हो रहा है। मोर का ये कनेक्शन है, मतलब ये डायरेक्ट है, तो एरो डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका हो गया, अब इसको काटो,
इसके इससे और इससे रिलेशन, जो हमें फाइंड करना है उसके साथ रिलेशन होता है, इसका इसका कभी मत करना। जो फाइंड करना है वैल्यू x के साथ रिलेशन होगा, पहले x का इसके साथ, फिर x का इसके साथ। अभी पैकेट भूल जाओ, अब इसके साथ का रिलेशन करेंगे। 900 ग्राम है, कॉस्ट है 28, ठीक है, तो जितना ग्राम उतना कॉस्ट। 1000 ग्राम, अब कॉस्ट क्या होगा नहीं पता, तो जितना ज़्यादा ग्राम होंगे उतने ज़्यादा कॉस्ट होंगे। ये भी मोर एंड मोर का है, ये भी डायरेक्ट जाएगा। ओके, अब इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको लिखते हैं, x/28 लिख लिया। उसके बाद एरो इसके तरफ है 1000/900 इंटू, इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इंटू 27/16। जिधर एरो के हेड होंगे वो ऊपर पहले लिखेंगे, ये भूलना मत। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए ऊपर नीचे, जस्ट कट इट आउट, you will get 5.25. okay, in this manner we will solve by 3 arrow. now next question, ये तुम्हारा ये तो डायरेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 12 men working 8 hours per day। सबसे पहले men लिख लो, hours लिख लो और days लिख लो। ये भी 3 एरो बनेंगे, ये तो पता है, लेकिन अभी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है हम नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो 12 आदमी 8 दिन 10 दिन लग रहा है, ठीक है। फिर द सेम वर्क इन 8 days, कितने आदमी लगेंगे, कि तुम्हारा यहाँ पे लिखा है कि वर्किंग 15 hours ए डे, एक दिन में 15 घंटा। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज व्हाट, तो नंबर ऑफ मैन की जगह x लिख देंगे, क्योंकि पता करना है कि कितने घंटे लगेंगे। 15 है, 15 hours, सेम वर्क है 8 दिन, 8 days लिखोगे, ठीक है, हो गया। अब जो फाइंड करना है उसके तरफ एरो कर देंगे, क्योंकि x फाइंड करना है। अब यहाँ देखोगे कि रिलेशन निकालो इसमें और नंबर ऑफ डेज में। तो 12 आदमी है, नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है, इससे इसका देखो रिलेशन, 12 आदमी नंबर ऑफ डेज इंक्रीजिंग। यहाँ पे 12 आदमी नंबर ऑफ डेज क्या है 8 घंटा। यहाँ आदमी ज़्यादा है घंटे कम है, तो ये इनडायरेक्ट होगा, तो ऊपर की तरफ इनडायरेक्ट में ऊपर एरो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखो, 12 आदमी नंबर ऑफ डेज ज़्यादा, ये भी क्या हो रहा है, एक कम है एक ज़्यादा है, मोर और लेस का कनेक्शन है, तो ये भी इनडायरेक्ट जाएगा, तो इसका भी ऊपर की तरफ करोगे। इससे हमेशा रिलेशन निकलता है, इससे एक बार इससे एक बार, जब इससे रिलेशन तो इसको भूल जाना, जब इससे रिलेशन होगा तो जब इन दोनों से रिलेशन निकालोगे तो ये बीच वाला भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ 8 10 डी, इसी तरह से फर्स्ट नंबर सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, 8 ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर 10.40, हाउ मेनी मोर कैन बी बॉट फॉर 16.90। तो ये यूनिटरी मेथड से भी आसानी से बन सकता है, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना है अभी एरो मेथड से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑरेंजेस लिखोगे और इधर लिखोगे कॉस्ट। 8 ऑरेंजेस कॉस्ट 10.40, तो कितने ऑरेंजेस होंगे, तो 6.90 आएंगे। तो x लिखोगे, तो 8 जितना ज़्यादा ऑरेंजेस होंगे दाम उतना बढ़ेगा, तो ये क्या है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन से बनाओगे। इसी तरह से 2 नंबर देखिए, 15 men can build a wall in 60 days, how many more men can required to build another wall of same size in 45 days। तो men लिखोगे, इधर days लिखोगे, ठीक है। तो 15 आदमी 60 दिन, कितने आदमी होंगे कि 45 डेज लगेंगे, x लेट कर लो x। अब देखो कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो 15 मेन है और 60 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो एक कम है एक ज़्यादा है, तो मोर और लेस का कनेक्शन है। मोर और लेस का कनेक्शन जब भी हो तो हम क्या करते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वे में हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट लाइक दिस, 15x 60, एरो हमेशा ऊपर होगा इनडायरेक्ट में, जो निकालना है उसका x, उसका एरो हेड डाउन, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन। सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ सी हियर 4 नंबर, a contractor undertake to dig a canal 6 kilometer long in 35 days and employed 90 men. He find that later after 20 days, पर 20 दिन के बाद only 2 kilometer of canal have been dug. तो यहाँ क्या बोल रहा है, how many more men must be employed to finish the work in time। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ लिख लोगे, डेज लिख लोगे, मेन लिख लोगे। ये 3 एरो वाला क्वेश्चन है। लेंथ है यहाँ पे 6 किलोमीटर, तो 6 35 दिन लग रहा है। इंसान कितना है, आदमी कितना है 90। तो यहाँ पे क्या है 2 किलोमीटर
20 दिन, नंबर ऑफ डेज सेम है 90, 20 आदमी आफ्टर 20 डेज 2 किलोमीटर ही डक किया है, कितना आदमी, उतना ही आदमी, 90 मैन, ठीक है। तो आफ्टर 20 डेज है तो 35 माइनस 20 कर दोगे तो क्या होगा, 15 दिन बचेंगे। और यहाँ लेंथ 6 है तो 2 किलोमीटर यहाँ पे ही फिनिश किया है, ओनली 2 किलोमीटर, तो 6 माइनस 2 करोगे दैट इज़ 4, ओके। और 90 आफ्टर 20 डेज 2 किलोमीटर कैनाल, हाउ मेनी मोर मैन, तो मोर मैन और कितना चाहिए, तो x, 90 तो ऑलरेडी है ही, 90 प्लस x करोगे, ठीक है। सॉल्व दिस लाइक दिस, 6 35 90, 2 किलोमीटर 20 मैन 90 डेज, सेम मैनर, ठीक है। जो बोला वो हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो 6 माइनस 2 करेंगे 4, और यहाँ 35 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि 35 डेज में 20 माइनस करोगे तो 15 दिन बचेंगे। अब इन दोनों में हमारा रिलेशन होगा 90 प्लस एक्स, 90 में और कितना आदमी जुटेंगे, तो 90 प्लस एक्स हमें ये फाइंड करना है, तो इसीलिए एरो इसका नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब तुमको रिलेशन निकालना है डेज और मैन में, तो अब ये ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, ऊपर वाला है सॉल्व करके मेरा ये निकला है। अब इन दोनों में रिलेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस करके ये मिला है, तो इन दोनों में देखो, तो ये 90 मैन है, 20 डेज लग रहे हैं, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मैन ज़्यादा है, डेज कम है। मोर और लेस का कनेक्शन जब भी हो, मोर और लेस याद रखोगे इनडायरेक्ट, और मोर एंड मोर तो डायरेक्ट, ज़्यादा आदमी ज़्यादा काम, ऐसा होना चाहिए। पर यहाँ मोर एंड लेस का कनेक्शन है तो ये इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा तो ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको भूल जाइए, अब इन दोनों में रिलेशन निकालो। 90 मैन है, कितना पहले किया, 2 किलोमीटर, 2 से किलोमीटर बढ़ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 90 आदमी मात्र 2 किलोमीटर, मोर और लेस का कनेक्शन। फिर यहाँ पे 9 और कितना आदमी जुटेगा, तो 90 प्लस एक्स तो 4 किलोमीटर, ये भी मोर एंड लेस का कनेक्शन, तो ये भी तुम्हारा इनडायरेक्ट हो, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, सॉरी, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट होगा। 90 मैन है, पहले 2 किलोमीटर था, अब 4 किलोमीटर बढ़ गया, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट, तो इसका एरो नीचे की तरफ जाएगा, क्लियर। अब इन दोनों में सॉल्व करो, इसको पहले लिखेंगे 90 प्लस एक्स बाई 90, इन दोनों में इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 20/15 इंटू 4/2, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एक्स वैल्यू। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क लेटर, ओके।